Welcome to Black Knight News. Today is Wednesday, November 14th. I am Karina. And I'm Lil C. Today's announcements include essay announcement and club announcement. The answer to yesterday's trivia question, what is the French name for the sport of running, jumping, and climbing over obstacles, is parkour. Today's cultural theme is art. The question today is, which French artist produced many artworks of the Moulin Rouge? If you know the answer, see Madam Pritchard in D130. You're expected to have your tablet with you every day fully charged. Turn your tablet on during first period and put it in sleep mode when not in use. If your tablet isn't working, bring it by the help desk. Leaving it at home ensures that it won't get fixed. Also, if something happens to your stylus or keyboard, complete the form at the help desk. Tonight is the fall sports banquet at 6 p.m. And now over to Lil C. The Key Club will be sponsoring a blood drive this Thursday, November 15th from 9 a.m. to 2:30 p.m. in the gym lobby. You must be 16 or older and weigh 110 pounds or more. If you are 16, you must fill out a parent/guardian consent form. See your first period Black Day teacher or Miss Hodges in room C22 for this form. Passes will be given out on Thursday, November 15th during first period. Please do not lose your pass because if you have no pass, you may not donate blood. The Medical Science Club travels to University of Virginia, November 15th. The Student Boxing Club, Height, will be hosting a winter coat drive on December 22nd from 2 p.m. to 4 p.m. at First Baptist Church of Charlottesville, Virginia. If you have a spare coat, please contact West Bellamy at westbellamy1@gmail.com for more details. Please stop what you are doing in observance of the minute of silence. Thank you. Please stand for the Pledge of Allegiance. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Please stand by for a special announcement. सदियों लंबी रात के खून का गाज़ा मलकर, सूरज की पहली किरणों का हाथ पकड़कर, मैं औरत, माटी की गुड़िया, नए रुतों के नए सफर पे निकली हूँ। अगले रुत की दस्तक। 3 सालों में मैंने वो सब कुछ देखा जो कि एक बच्ची को बचपन में कभी मिला नहीं होगा देखने को, और वो कभी देखा नहीं होगा। मेरा नाम मलाला यूसुफजई है और मैं 8वीं जमात की तालिबा हूँ। मैं मिंगौरा स्वात में रहती हूँ और यहाँ मैं पैदा हुई, और ये एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत वादी है। लेकिन 2007 में यहाँ पर दहशतगर्दी फैल गई और यहाँ पर दहशतगर्द आए। उन्होंने इस खूबसूरत वादी को एक ऐसे हालात में डाल दिया जिसमें ना कोई सयाह आ सकता था, ना हम आज़ादाना तौर पर स्कूल जा सकते थे।
मुझे तालीम की अहमियत का अंदाज़ा उस वक्त हुआ जब तालीम पर पाबंदी लगाई गई, क्योंकि मुझे इससे पहले अंदाज़ा नहीं था कि मैं क्यों स्कूल जा रही हूँ, क्यों आ रही हूँ, क्यों मैं बुक्स पढ़ रही हूँ। ब्लैक डेज थे हमारी लाइफ के। तो मैंने सोचा कि इतना कुछ हो रहा है और कोई भी हम में से आवाज़ नहीं उठा रहा, कोई भी अपने हकूक़ के लिए खड़ा नहीं हो रहा। उस वक्त बोलना बहुत बड़ा काम था। मलाला फिर एक ऐसी बच्ची रह गई जो कि अपनी मर्जी से तमाम मीडिया से बोलती थी। मैंने अपने वालिद से कहा कि मैं इंटरव्यू दूंगी और ये तो मेरे लिए एक मौका है कि मैं दुनिया को बताऊं कि क्या हो रहा है हमारे साथ। तो धीरे धीरे मैंने ये इसको मामूल बना लिया। मैंने इसको एक डायरी की शक्ल दी। बीबीसी को ये डायरी लिखती थी और ये डायरी जो थी मैंने 4 महीने के लिए लिखी और मतलब इसमें जो कुछ भी था मेरे दिल में सब कुछ लिख लिया दिल खोल के। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि मैं स्कूल जाऊं, अमन हो और मुझे सिर्फ एक ही अवार्ड मिल जाए, वो है स्वात में अमन, कि स्वात में अमन आ जाए, और दूसरा ही कि मैं स्कूल जाऊं। मुझे इसके अलावा कोई भी अवार्ड नहीं चाहिए था और ना ही मुझे कोई अंदाज़ा था कि मुझे मिलेगा। याद रहे वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने सवाब की 8वीं जमात की तालिबा मलाला यूसुफज़ई को कौमी अमन अवार्ड दे दिया है। सवात के इलाके में गोरा की रहायशी 13 साला मलाला यूसुफज़ई को सवात में तालिबान के दौर में जिद्दोजहद करने पर अवार्ड के लिए नामजद किया गया था। मलाला यूसुफज़ई ये अवार्ड हासिल करने वाली सबसे पहली तालिबा है। ये अवार्ड हर साल गैर मामूली सलाहियतों के हामिल नौजवान को दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने नेशनल यूथ पीस प्राइज़ का ऐलान किया तो बहुत ज़्यादा खुश हुई, नॉमिनेशन से भी ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि अपने मुल्क में एक ऐसे अवार्ड का ऐलान हुआ जो कि सिर्फ मेरे लिए नहीं था, वो आगे भी जनरेशन के लिए जारी रखा जाएगा, एक इनिशिएटिव था। और कौमी सतह पर भी इनके नाम से एक ऐसे अवार्ड का ऐलान किया गया जो कि मलाला अमन अवार्ड के नाम से तारीख में याद रखा जाएगा। अब जब मैं सिचुएशन को देखती हूँ तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि कितना अमन है, कितना पुरसुकून माहौल है और किस तरह लड़कियाँ जो है स्कूल जा रही है। मेरा मकसद है कि मैं इंसानियत की खिदमत करूँ, उनको इनके हकूक़ दिलाऊँ और मैंने इस मकसद के लिए एक राह चुनी है और वो है पॉलिटिक्स, क्योंकि पॉलिटिक्स ही के ज़रिए मैं इस पूरे मुल्क की खिदमत कर सकती हूँ और इस मुल्क को लीडर्स की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर लीडरशिप की, क्योंकि अगर इस मुल्क को अच्छे, ऑनेस्ट और दयानतदार लीडर्स मिल जाए तो ये मुल्क यकीनन दुनिया की अजीम तरीन ममालिक में होगा और मैं इसी बात की उम्मीद रखती हूँ कि मैं ऐसी ही लीडर बन जाऊँ। Hi, I'm representing Amnesty International and I'm here to tell you about our Human Rights Week, which is going on all week. Every day at lunch you can sign petitions for different human rights activists and events. And Thursday we're having our second assembly, and that's during first and second period. During first period we're showing a video, and then during second period there will be a panel which you can interact with. And then after school on Thursday we're having a write-a-thon where pizza will be served. So come out for that. This has been Lil C and Karina for BKN. Thank you for watching BKN. See you Wednesday. Please turn off your TVs after the credits. BKN Black Night News. I know what it feels like. Come on, make me feel like